We will be starting our chapter 2 solution of class 12 chemistry, and in that we will be starting with Van 't Hoff factor, which is the last topic of chapter 2 solution. I'm starting with last topic because everyone is demanding this topic specifically and is facing problem in this. That's why I have made a video on Van 't Hoff factor. If you want me to make videos on colligative properties like basics of solution chapter, then you can comment down below and I will make for that also if you want me to make it. Okay, but now today in this video I will be talking about Van 't Hoff factor. Like, this is the first half of the Van 't Hoff factor in which we will be talking about the basics of Van 't Hoff factor. Like, we will be talking about like what is the need to introduce Van 't Hoff factor as a topic. Then we will talk about association case, dissociation case, degree of dissociation, degree of association. Then we will talk about various formulas for I that we will derive today itself in this class, in the first half of the Van 't Hoff factor. And in the next half we will talk about like abnormal molecular mass, in which we will solve more numericals for Van 't Hoff factor, which are very important for exam point of view. And today also we will solve some numericals which we will, on the basis of the concepts that we will study today. But in next half you will find more numericals and abnormal molecular mass topic covered. So let's start with today's video, first half of the Van 't Hoff factor. Okay, we have studied like 4 colligative properties till now. Like, you must have studied 4 colligative properties till now in solution chapter. So first colligative property was relative lowering in vapor pressure, and there was a trick to remember the colligative property. Basically, you must know that what is a colligative property. First of all, I must tell you that basically colligative property is a property that depends upon the number of solute particles and does not depend upon the nature of solute particles. So these 4 colligative properties, the trick to remember these 4 colligative properties is that redo, R-E-D-O, redo. R for relative lowering in vapor pressure, E for elevation in boiling point, D for depression in freezing point, and O for osmotic pressure. So this is a short trick that you can remember these colligative properties. Let us start with relative lowering in vapor pressure. Basically, we did a formula for a relative lowering in vapor pressure. That was xp, which was mole fraction of solute, is equals to p naught a minus p upon p naught a, where p naught a is the pure vapor pressure of component A, and p is the partial vapor pressure of component A. Okay, and xp is the mole fraction of the solute, in which now I will tell you how why we are considering relative lowering in vapor pressure as a colligative property. Basically, we are considering a relative lowering in vapor pressure as a colligative property because it is depending upon the number of solute particles. How it is depending upon the number of solute particle? If you see that p naught a minus p upon p naught a is the relative lowering in vapor pressure, and xp here is the number of moles of B upon number of moles of B plus number of moles of another component which is present there. So it is depending upon the number of solute particles. That's why we are considering it as relative lowering in vapor pressure. Same is the case with elevation in boiling point. In elevation in boiling point, we are talking about delta TB. The formula that is given is delta TB is equals to Kb into molality. Now molality ka formula is that number of moles of solute upon mass of solvent in kg. So it is depending upon the number of solute particles. It is directly proportional to number of solute particles. That's why we are considering this also as a colligative property, which is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. What is elevation in boiling point? Delta TB here is elevation in boiling point, and Kb is the molar elevation constant, and small m is the molality. Another formula for elevation in boiling point is delta TB is equals to TB minus T naught B, where delta TB is the elevation in boiling point, TB is the boiling point of solution, and T naught B is boiling point of solvent. Naught here represents solvent and TB represents here boiling point of solution. Now let us talk about depression in freezing point. Same with the case depression in freezing point also. Okay, delta TF is equals to Kf into molality. Here molality is equals to number of moles of solute upon number of moles upon mass of solvent in kg. So here also delta TF is directly proportional to number of moles of solute. That's why we can say that it is a colligative property. And we had a formula that delta TF is equals to T naught F minus TF, where T naught F is the freezing point
of solvent, and Tf is the freezing point of solution. And now let us talk about osmotic pressure. Osmotic pressure was represented by pi and it is equal to mRT, where m is the molarity, r is the universal gas constant, and T is the temperature. Here molarity is also like number of moles of solute upon volume of solution liter, and similarly pi is directly proportional to number of moles of solute. That's why it is a colligative property. And now we can also write pi is equal to CRT. Why? Because molarity is a concentration term. That's why we can write it like CRT. Basically we are denoting molarity m as concentration C, so it is the same thing. And you must know that we were talking about this for dilute solution. Like for dilute solution we were for example take example of relative lowering in vapor pressure. The formula was xb is equals to p naught a minus p upon p naught a, where xb is equals to number of moles of b upon number of moles of b plus number of moles of another component which might be present. Okay, so here for dilute solution we can take number of moles of solute as like negligible. So in denominator the number of moles of solute can be taken as negligible, so we can say that number of moles of solute in numerator upon में number of moles of solvent, which is the another component, for example NB upon में Na. So basically what I'm trying to say is that we are taking this for dilute solution. We were assuming that the solution is dilute. That's why we was ignoring while solving some numericals. Now we can say that each colligative property depends upon the number of solute particles and does not depend upon the nature of solute particles. That's why it is known as colligative property. Okay, till now we can say this. Till now we have discussed that the solutes which were taken were non-electrolytes which do not want to dissociate or associate, in which dissociation or association does not take place. So that's why on the basis of this we were solving the numericals in which there was no dissociation and association, and that's why the concept of Van't Hoff factor was not introduced till now. But now we will be till now what we did was that we were taking non-electrolyte in our question, for example urea, glucose and sucrose. So on the basis of that we were solving the question. But now on what we will do is that if in the question it asks if it gives some electrolyte, then what we will do. So this was the basic concept that is introduced. This is the basic concept that is introduced now, on the basis of which we will solve numericals further. Now according to this concept, what it says, it is basically talking about it is talking about the electrolytes. Now what are electrolytes? Electrolytes are those who want to dissociate or associate, in which association or dissociation takes place, we can say. Example NaCl, Na2SO4, aluminium sulfate. So these are electrolytes. Now अब एसोसिएशन होएगा या डिसोसिएशन होएगा ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पे. अब हम वो पढ़ते हैं. Now we have to deal with the electrolytes which can dissociate or associate. We have observed that the NaCl was dissociating in a solution while performing an experiment. So we can say that NaCl on 100% dissociation can dissociate into Na plus and Cl minus ions. Then you must be thinking that there is 1 mole of solute, but from looking outside. But when you put 1 mole of solute in formula, for example you are solving a question and you have taken 1 mole of solute and you have put that value in formula, then you were getting 3 atm. Say you have put in pi is equals to mRT, and in that the molarity portion you have taken 1 mole of solute. Okay, but on observing the value of pi, it was 6 atm. So we can say that observed value is not equal to the calculated value. But in reality 2 moles of solute was there in solution, but we didn't knew about it. And for that we need a new term of which is Van't Hoff factor, which is I, to understand this dissociation or association. इस dissociation और association को understand करने के लिए हमने एक new term introduce किया, which is Van't Hoff factor, which is denoted by I. It is not necessary that the particles always decrease in a solution or always increase. Let me explain this. For example, there are some substances that dissociate, and for those the value of I is more than 1. We have observed this, that the one who are dissociating has value of I more than 1, while the one that associate have value of I less than 1, say 1 by 2, 1 by 3. Like basically if it is dimerizing, then its value must be 1 by 2. If it's trimerizing, then its value must be 1 by 3. So it is different in different cases. For example, you must know that for dissociation I is always greater than 1, and for association I is always less than 1. This is the fact that we have, that I must conclude with.
when I will explain further. Now you must be wondering that NaCl on dissociating, it will give Na plus and Cl minus ion, and if we will according to this, we must take 2 moles of solute in our question value, but you must say that the nature of the solute is changed. हाँ, ये क्वेश्चन हुआ होगा, एक राइज किया होगा, बट यू मस्ट नो दैट what is the definition of colligative property. Colligative property is a property that depends upon the number of solute particles. It only depends upon the number of solute particles, but it does not depend upon the nature of solute particles. Nature of solute particle कुछ भी हो, it does not depend on that, but it depends upon the number of solute particles. solute particles का नंबर कितना, बस उस पर डिपेंड करता है, एंड उस पर डिपेंड करता है तभी वो आंसर चेंज हो रहा है. अगर आंसर वो चेंज हो रहा है तभी वो उसकी हमें ज़रूरत है कि हम उसको देखें कि रियलिटी है क्या. एंड दैट्स वाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टॉपिक विच इज़ Van't Hoff factor, which is denoted by I. And for dissociation case, I is always greater than 1, and for association case, I is always less than 1. We will see how it is. Okay, let me proceed further. If in question it is asking you that you have to calculate colligative property for if NaCl, MgCl2, Na2SO4, aluminium sulfate, and even carboxylic acid is given, then your formula changes for colligative property, and you have to apply Van't Hoff factor for such cases. For electrolytes, you can say. Now in case of dissociation, colligative property increases because moles of solute also increases. Dissociation के केस में ना आपकी जो ऑब्जर्व्ड colligative property है वो इंक्रीज़ करती है, बिकॉज आपके जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है ना वो भी इंक्रीज़ करते हैं. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो है वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की आप ये कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दैट्स वाई वी हैव कंसिडर्ड इट एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल जो आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर लेते हो उसमें आपने एक्स बी जो लिया था विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट. It is directly proportional to the relative loading in vapor pressure. That's why we have considered it as a colligative property, because it is depending upon the number of solute particles. So basically in case of dissociation, colligative property increases because moles of solute increase कर रहे हैं. moles of solute increase करेगी तो colligative property increase करेगी ना. तो dissociation के केस में हम कह सकते हैं कि that colligative property इंक्रीज़ करती है colligative property because moles of solute also increases. अगर आगे क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि जैसे आपको एक डिसोसिएशन का केस देते हो और एक एसोसिएशन का केस देते हो, और उसमें आपसे आपको डायरेक्टली आप जज कर सकते हो कि उसमें जिसमें एसोसिएशन हो रहा है, जिसमें फॉर एग्जांपल हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, एंड अगर हम डिसोसिएशन की बात करें, अगर हम NaCl ले रहे हैं, तो यू कैन से दैट डिसोसिएशन की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज से फॉर एग्जांपल आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर NaCl will obviously more if it is not given for electrolyte. For electrolyte, the I will be 1. For electrolyte, I will be 1, but for non-electrolytes, I will change or vary. According to association, it is dissociation. Dissociation में भी I change करेगा. किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 5 होएगा. And similarly, association के केस में क्या होएगा? 1/2, 1/3, 1/4. So it will vary. Okay, basically what I'm trying to say is that ये आप डायरेक्टली जज कर सकते हो कि किसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, मतलब किसका, जैसे आपको बताना है कि विच हैज़ मोस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का लेना है, तो आपको बताना है कि NaCl का ज़्यादा होएगा या फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा होएगा. तो आप कह सकते हो कि NaCl का ज़्यादा होएगा, बिकॉज वी नो दैट ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इंक्रीजेज, एंड डिसोसिएशन के केस में इंक्रीज हो रहा है, एसोसिएशन के केस में डिक्रीज हो रहा है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद Van't Hoff factor. It is basically represented by I, and I tells about the number of particles increasing or number of particles decreasing, और in हिंदी यू कैन से कितने गुना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े या घटे, और जितने गुना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े या घटे उतने गुना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी. ओके, the formula for I, first formula that we must know is that total number of moles of solute particle after dissociation or association upon में total number of moles of solute before dissociation and association. नंबर ऑफ मोल्स ही लेने हमें ऑफ सल्यूट के ही लेने हैं, क्योंकि हमने बात ही हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट में सल्यूट की बात कर रहे हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट में हमारे क्या थे? यूरिया था, हमारा ग्लूकोज था, सुक्रोज था, ये सारे सल्यूट्स हैं ना हमारे. एंड इलेक्ट्रोलाइट के इसमें क्या हमारे NaCl है, Na2SO4 है, ऐसे ही हमारे और है क्या कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी है, उसमें हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट भी है, ये सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है. कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम लेंगे फॉर एसोसिएशन केस, देन हम बेंजोइक एसिड भी लेंगे फॉर एसोसिएशन केस. सो एसोसिएशन में बस 2-3 है, बाकी आपको एक मेन चीज़ पता चलेगी, देन यू कैन गेस एवरीथिंग.
ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रोड्यूस हुए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के पहले कितने नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स फॉर्म हुए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिसोसिएशन केस। अब डिसोसिएशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक तो हमने बस डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में एक ब्रीफ सा पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल आपने क्या है डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, क्यों डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा है, क्यों एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से कम है। सो डिसोसिएशन के केस में हम इलेक्ट्रोलाइट्स, अभी तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, दैट्स वाई वी हैव इंट्रोड्यूस दीज टू टर्म्स विच इज डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, बिकॉज इनके केस में डिसोसिएशन एसोसिएशन पॉसिबल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में पॉसिबल नहीं है। नाउ फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट 100% डिसोसिएशन। अभी 100% डिसोसिएशन के बारे में बात करेंगे, देन वी विल कम टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो हमने अल्फा टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली मैं बता देता हूँ कि वो हमारा 100% डिसोसिएशन के लिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले 60% डिसोसिएशन हुआ है, 50% डिसोसिएशन हुआ है, देन आपका आंसर में वेरी करेगा एंड तभी हम एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो हम बाद में करेंगे। बट अभी के लिए हम 100% डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। इन 100% डिसोसिएशन बेसिकली हमारा, अगर हम NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl ऑन 100% डिसोसिएशन गिव्स यू Na+ एंड Cl- आयन and aqueous state, तीनों aqueous में है। Now not always there will be 100% dissociation and accordingly value for I will change and vary। 100% dissociation है for NaCl, then I की वैल्यू जो हमारी है निकली 2/1, तो हमारी I की वैल्यू हुई 2। अब 2 कैसे हुई, जैसे देखो ना, फॉर्मूला हमने पढ़ा था दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अभी डिसोसिएशन की केस हो रहा है तो हम आफ्टर डिसोसिएशन लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितने, एंड एक तो Na+ का एक मोल है और एक Cl- का है, तो कितने हुए टोटल 2। तो I इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में हमारा 2 एंड उसमें हमारा 1, बिकॉज NaCl का जो है एक ही है, तो 2/1 विच इज इक्वल्स टू 2। सो नॉट ऑलवेज देयर विल बी 100% डिसोसिएशन एंड अकॉर्डिंगली वैल्यू फॉर I will change and vary। Now for 1 mole of MgCl2 on 100% dissociation, it will give you 1 Mg2+ plus 2 Cl-। So the value of I will be 3/1 which is 3। अब 3 कैसे हुआ, जो हमारा प्रोडक्ट में आप देखोगे 2+, we will see 2 plus 1 which is 3, so that's why we have put 3 in numerator, 3/1 which is equals to 3। Now for 1 mole of aluminium sulfate which is 100% dissociation, it will give 2Al3+ plus 3 SO4 2-। So in this case I will be 5, because in product in numerator you will write the you will write number of moles of solute after dissociation, and in denominator you will write number of moles of solute before dissociation। so before dissociation जो है 1 aluminium sulfate है, 1 ही रहेगा हमेशा, एंड जो आपका आफ्टर है नहीं, वो एसोसिएशन के केस में हमारा 2 भी हो सकता है, बिकॉज हाँ, बट उसमें न्यूमरेटर 1 होएगा, हाँ ये कह सकते हो आप। तो फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट यू कैन से दैट आई की वैल्यू 5। आप ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते हो आई की वैल्यू इफ़ 100% डिसोसिएशन इज देयर। नोट, इफ़ 100% डिसोसिएशन है तब आप आई की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। बट अगर आपसे लाइक एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर दे अल्फा विच इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड उससे पूछे कि आपके 50% डिसोसिएशन में आपकी आई की वैल्यू कितनी है, तो आपकी आई की वैल्यू चेंज हो रहेगी। आपकी अराउंड लाइक NaCl की आप मानो तो अभी 1.7 1.8 हो रहेगी, आपकी 2 नहीं रहेगी। समझ रहे हो ना, कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है वो वेरी करता है उससे। सो डिसोसिएट ना, अभी तक हम क्या देख पा रहे हैं, हम डिसोसिएशन के केस में हमारी आई की वैल्यू हमेशा बढ़ रही है, 1 से ज़्यादा ही है। एज वी कैन सी फ्रॉम अबव रिएक्शन दैट पोटाशियम, अगर हम पोटाशियम फेरोसाइनाइड का भी ले ऑन 100% डिसोसिएशन, इट विल स्प्लिट इनटू 4K+ प्लस फेरोसाइनाइड एन विद -4 वाला। तो टोटल हमारी इसमें भी हमारा 5 ही निकली है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इट कैन नॉट ब्रेक फर्दर, दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ इन प्रोडक्ट इट इज़ 4+1 विच इज़ 5/1। सो आई की वैल्यू इज़ 5 फॉर पोटाशियम फेरोसाइनाइड। अभी तक हमने क्या कंक्लूड, अब हम कंक्लूड करेंगे दैट हियर इन ऑल द केसेस वी टुक 100% डिसोसिएशन लिया हमने, इन ऑल इन विच अल्फा इज़ 1, हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारी 1 है, तभी हमने इनकी वो निकाली, बिकॉज हम जब हमारी 100% होती है तो हम अल्फ़ा हम 1 लेते हैं। अगर आपकी 60% है तो आप अल्फ़ा 0.6 लेंगे। अगर आपका 40% डिसोसिएशन है तो अल्फ़ा 0.4 लेंगे। अगर 100 है तो 1 लेंगे, 1, where degree of dissociation is 1। And we also observed that I is greater than 1 for dissociation case, and observed colligative properties greater than calculated colligative property। अब ये देखो कैसे हुआ। अब observed colligative property जो है ना, अब इसमें आपने लाइक बाहर से देखा, लाइक जैसे आप एक चीज़ होता है, आप कुछ कैलकुलेट करो और किसी चीज़ को ऑब्जर्व करो लाइक लाइव, तो उसमें डिफरेंस होता है।
अगर आप किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हो तो आपको उतनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती, आप उतना मतलब क्लियरली नहीं जज कर पाते कि उसका क्या वैल्यू होनी चाहिए। सेम हेयर केस आप रिलेट कर सकते हो कि जो आपकी कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ना, आप ये जज नहीं कर सकते कि वो NaCl का जो है मॉलिक्यूल वो 2 में डिसोसिएट होएगा या 3 में होएगा या 4 में होएगा। आप उसको एक ही एज अ होल ही ले रहे हो, और आप अगर एज अ होल ले रहे हो तो आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें वेरिएशन होएगा। अब अगर आपकी कैलकुलेशन में वेरिएशन होएगा तो आप ये कह सकते हो कि जो ऑब्जर्व्ड कि हमने देखा कि कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी वो कम आ रही थी, क्योंकि हमने 1 मोल लिया था NaCl का। हमने 1 मोल NaCl का लिया था, बट हमें लेना कितना चाहिए था, 2 मोल, बिकॉज वो 2 में डिसोसिएट हो रहा है Na+ एंड Cl- में। दैट्स वाई वी कैन से दैट ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने देखी वो ज़्यादा थी दैन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप 2 ले रहे हो तो आपका आंसर आना चाहिए 6 ATM, बट आपका आ रहा था 3 ATM। दैट्स वाई वी कैन से दैट ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज मोर दैन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुए, या 1 मोल में से नंबर ऑफ, यहाँ इंग्लिश में बोलो, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब 1 मोल में से अल्फा मोल आपके डिसोसिएट हुए। तो आप ऐसे आप रिलेशन निकालोगे, 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुए तो इतने मोल में से कितने होंगे, समझ रहे हो ना। देख तो एग्जाम्पल करवाता हूँ भाई। फॉर एग्जाम्पल नाउ रिएक्शन इज डिसोसिएटिंग 100%। अगर हमारा फिर से हम अब टिल नाउ हमने रिएक्शन कितनी डिसोसिएटिंग 100%, बट नाउ इफ़ इट इज़ डिसोसिएटिंग 50%, 20%, 30% और उससे 70%, देन उसमें आई की वैल्यू में क्या चेंज होएगा। अब आई की वैल्यू जो है हर के लिए अलग होगी, NaCl के लिए अलग होगी, MgCl2 के लिए अलग होगी, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए अलग होगी, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए अलग होगी। सेम इज़ द केस विद एसोसिएशन ऑल्सो। एसोसिएशन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिसोसिएशन कंप्लीट करते हैं। तो डिसोसिएशन के केस में NaCl अगर हम ले रहे हैं, NaCl का ये रिवर्सिबल रिएक्शन का हमने साइन करवाया, क्योंकि ये 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा, हमने ये अज्यूम किया अब 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा। सो NaCl on like some say n dissociation gives you Na+ and Cl-। सो इनिशियली उसकी जो हमने उसका 1 मोल लिया, NaCl का 1 मोल ही लिया, हमारे पास 1 मोल है, बट वो इनिशियली उतना Na+ और Cl- का उतना डिसोसिएट नहीं हुआ। इनिशियली हमने माना कि उसका 0 मोल डिसोसिएट हुआ, 0 कुछ नहीं हुआ अभी तक। बट एट इक्विलिब्रियम हमने देखा कि उसका अगर हमने देखा कि NaCl में से 1 मोल में से अल्फा मोल का थोड़ा सा डिसोसिएशन हुआ, 1 - अल्फा हमने लिया, तो हमने देखा कि अगर 1 मोल के लिए हमारा 0 था, तो 1 - अल्फा के लिए हमारा Na+ कितना होगा, अल्फा होएगा। सेम विद Cl- भी अल्फा होएगा, क्योंकि 1 मोल हमारा Na+ एंड Cl- है। अगर देखो अगर 2 मोल Na+ होता और अगर 2 मोल Cl- होता तो हम 2 अल्फा लेते, और NaCl में 1 - अल्फा एट इक्विलिब्रियम में देख रहा हूँ। ये दिस इज़ आफ्टर डिसोसिएशन। आपने देखा कि डिसोसिएशन कितना कितना हुआ, 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुए, 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुए। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट अल्फा इज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ यू कैन डिराइव योर ओन फॉर्मूला फॉर आई यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन। आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि दैट आई इज इक्वल्स टू आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। सो बेसिकली जो आफ्टर डिसोसिएशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपली ऐड कर दो अल्फा प्लस 1 - अल्फा। आपका आंसर आएगा 1 + अल्फा अपॉन में बिफोर डिसोसिएशन तो 1 ही है, 1 मोल ही है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, तो आपको न्यूमिनेटर में ही होएगा। एसोसिएशन के केस में आपका डिनोमिनेटर में आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज बट डिसोसिएशन में आपको बस न्यूमिनेटर में देख के सॉल्व करना है आगे। तो आपकी आई की वैल्यू फॉर NaCl है, ये फॉर NaCl आपकी 1 + अल्फा है, इन विच अगर आप पुट करो, आपको कंफर्म करना है कि अभी जो हमने पहले आई की वैल्यू निकाली थी फॉर NaCl फॉर MgCl2 वो करेक्ट है या नहीं। तो आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो पुट करो, अल्फा की वैल्यू 1 पुट करो फॉर 100% डिसोसिएशन, देन यू विल गेट I = 2। This is the like confirmation test for what we did earlier. Now similarly we can calculate value of I for MgCl2 as well। MgCl2 के लिए क्या, Mg2++ 2Cl- में डिसोसिएट होएगा। तो सिमिलरली एक मोल हम MgCl2 का लेंगे, देन इनिशियली वो 0 है, देन इक्विलिब्रियम पे हमने अगर उसका अल्फा मोल लिया, अल्फा मोल डिसोसिएट हुए, एंड बट इसमें हमारा 2 अल्फा, जिसमें हम ना जैसे है ना 1 - अल्फा तो MgCl2 के लिए है ही, बट मैग्नीशियम का तो 1 हुआ तो हमने अल्फा लिया, बट Cl के हमारे 2 हुए तो 2 अल्फा ले गए हम। इसमें 1 मोल से 2 मोल गया तभी हमने 2 अल्फा लिया है। तो इसके लिए भी आई का जो है हमारा फॉर्मूला 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो हमारा आएगा I = 1 + 2 अल्फा फॉर MgCl2। फॉर NaCl हमारा क्या आ रहा था, 1 + अल्फा, बट फॉर MgCl2 वी आर गेटिंग 1 + 2 अल्फा। अब इसको भी कंफर्म कर सकते हो, फॉर 100% डिसोसिएशन हमने जो निकाला था अल्फा, हमें इस केस में भी हमें 1 लेना है फॉर 100% डिसोसिएशन, तो हमारी आई की वैल्यू जो हमारी 3 आएगी।
टिल नाउ आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, सो अगर हमें सिमिलरली पोटेशियम फेरोसाइनाइड का भी निकालना है फॉर लाइक, ओके, सो हमने इसमें डिसोसिएट कर दी कि 4K प्लस एंड फेरोसाइनाइड आयन में. दैन इसमें इनिशियली उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारी 1 है, दैन उसकी 0 हो रहेगी, 4K प्लस की 0 एंड फेरोसाइनाइड आयन की 0. दैन इक्विलिब्रियम पे उसकी 1 माइनस अल्फा अगर हम ले रहे हैं. तो सिमिलरली हम इसमें देखेंगे प्रोडक्ट में हमारे कितने आयन्स बन रहे हैं पोटेशियम के, 4 बन रहे, तो हम 4 अल्फा लेंगे. एंड फेरोसाइनाइड आयन के 1 अल्फा है, तो अल्फा लेंगे हम. तो अब आई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सिंपली हमें ऐड करना है, वो फॉर्मूले में डालना है दैट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में बिफोर डिसोसिएशन. आफ्टर डिसोसिएशन हमारे कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा. एंड बिफोर डिसोसिएशन हमारे कितने हैं, 1. सो 1 प्लस 4 अल्फा. सो फॉर पोटेशियम फेरोसाइनाइड में हमारा आई की वैल्यू है 1 प्लस 4 अल्फा. फॉर 100% डिसोसिएशन अगर आपको इसमें भी कंफर्म करना है, देन यू कैन पुट अल्फा इज इक्वल टू 1, देन योर आई विल कम 5. Now in your book a formula is given, but I don't want anyone to remember that formula because I want everyone to understand the concept, but I am telling you for your concern. Okay, formula says that अगर आप AN ले रहे हो, जैसे आप हाँ AN ले रहे हो, फॉर ये डिसोसिएशन की बात हो रही है, AN ले रहे हो तो आपके जो है Na मोल्स बन रहे हैं, Na मोल्स बन रहे हैं. फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा था कि जैसे NaCl आपने लिया, देन आपके Na प्लस एन Cl माइनस बने. सो बेसिकली उसके आगे कुछ नंबर ऑफ मोल्स थे ना. सिमिलरली हमने Na यहाँ पे कंसिडर किया, N मोल्स. हमें पता नहीं है कितने मोल्स हैं, हम दैट्स वाई वी हैव टेकन A. ओके, इनिशियली उसके 1 थे एंड उसके जो प्रोडक्ट साइड में उसके 0 है. सो इक्विलिब्रियम में हमने देखा कि अल्फा मोल डिसोसिएट हुए, तो 1 माइनस अल्फा फॉर रिएक्टेंट साइड विच इज़ फॉर AN एंड N अल्फा फॉर प्रोडक्ट साइड. तो हमने इसका भी आई का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, वैसे ही 1 माइनस प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन ऊपर, विच मीन्स दैट डिसोसिएशन का पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसोसिएटेड आफ्टर डिसोसिएशन का हमने ऊपर लिया एंड बिफोर डिसोसिएशन का हमने नीचे लिया. सो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा अपॉन में 1. सो वी कैन, अब जो 1 है उसको वापस शिफ्ट कर दिया, तो 1 आई माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा कॉमन लिया, N माइनस 1. सो अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन में N माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस केस में. अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. यू मस्ट बी रियलिस्टिक. जो आपको आपके सामने क्वेश्चन, आप खुद उसका डिराइव करो फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल MgCl2 का है, आप खुद उसका डिराइव करो, 1 प्लस 2 अल्फा निकला. NaCl का है, 1 प्लस अल्फा निकला. ये फॉर्मूला पे मत जाओ, फॉर्मूला पे इसको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है ना. आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप डायरेक्टली उसको अप्लाई करो. फॉर्मूला पे क्यों जा रहे हो, फॉर्मूला मत लगाओ. मैं कह रहा हूँ अभी भी फॉर्मूला मत लगाओ, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. उस पर अगर कुछ एक्सेप्शन आ गया आप जो अपने आप से लगाओगे, अपने आप से फॉर्मूला बनाओगे, वो एटलीस्ट आपको पता तो होगा कि करेक्ट है. मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने वो डिराइव किया फॉर्मूला अपने आप, ना कि दूसरे के फॉर्मूला पे गए. ये भी फॉर्मूला करेक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बट वो एक खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए अगर फॉर्मूला भूल गए, कुछ ऐसा केस हो गया, देन आई एम सेइंग कि वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो फॉर्मूला कर लो, पता होना चाहिए वैसे. चलो ठीक है, आपके ऊपर है, जो जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो. अब नाउ if in exam it says that in case of NaCl it is dissociating 60%, then you will take alpha में, जैसे मैंने बोला पहले, alpha आप 0.6 लोगे and will put in the formula that you have made or in the formula that is given in your book which I have shared just right now. Okay, for 40% alpha 0.4, for 50% alpha 0.5. For example, for NaCl I is equals to 1 plus alpha जो हमने निकाला था. For 100% dissociation alpha was coming out, alpha was 1 and I was coming out 2. But for 60% के लिए अगर आप देखो, I में डालो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा हमने निकाला था, अल्फा की वैल्यू फॉर 60% क्या है, 0.6. सो I इज इक्वल टू 1.6. देन I हमारा 1.6 होएगा अगर हमारा 60% डिसोसिएशन है. डिसोसिएशन के केस में अल्फा जो है हमें पुट करना है 0.6 करना है, तभी हमारा ये यूज़ हुआ बेसिकली. समझ रहे हो ना कि अब वैंट ऑफ फैक्टर समझ आ रहा होगा कि हमने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया टॉपिक को. आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ. नाउ डिसोसिएशन केसेस आर ओवर एंड लेट्स टॉक अबाउट सम एसोसिएशन केस. डिसोसिएशन के केस में अभी तक हमने क्या पढ़ा, जल्दी से रिवाइज करते हैं. डिसोसिएशन के केस में हमने ये पढ़ा कि आई की वैल्यू जो हमेशा ज़्यादा आ रही है 1 से. डिसोसिएशन के केस में हमने उसका फॉर्मूला डिराइव किया, खुद से डिराइव किया. हमने देखा कि आई की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आ रही है. हमने ये देखा कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑलवेज मोर देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कैलकुलेटेड से ज़्यादा आ रही है ऑब्जर्व्ड जो है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं. हम तो बस बाहर से एक व्यू देख रहे हैं कि NaCl का 1 मोल है, बट हमें अंदर की स्टोरी नहीं पता ना कि उसमें 2 मोल डिसोसिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा आंसर वेरी कर रहा है. तभी हमने आई इंट्रोड्यूस किया, वैंट ऑफ फैक्टर. नाउ एसोसिएशन के केस में, आप एसोसिएशन स्टार्ट करें हम. एसोसिएशन के केस में हमारा आई की वैल्यू जो है इट इज़ लेस देन 1. देयर आर 2 और 3 केसेस
फॉर एसोसिएशन केस में हमारे 2 और 3 है। जैसे हमारे डिसोसिएशन के केस में हमारे बहुत है ना, NaCl है, MgCl2 है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, बस। बट एसोसिएशन के केस में बस 2 या 3 है। एक तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा बेंजोइक एसिड है। देन यू कैन से, आप खुद ही ड्राइव कर सकते हो ट्राइमर के लिए, टेट्रामर के लिए। स्टार्ट करते हैं आप। जैसे आपने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए इन 100% एसोसिएशन की बात करेंगे पहले। इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन आपने बना दिया CH3COOH के 2 होल ट्वाइस, मतलब होल ट्वाइस लेंगे उस, ठीक है। तभी इसमें एसोसिएट हो रहा है, इसमें हमारा एसोसिएट हो रहा है, उसमें हमारे डिसोसिएट हो रहे थे, इसमें हमारे एसोसिएट होएंगे। सो वी कैन इन्फर दैट ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है इसमें, वो हमारी कम होएगी दैन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। बिकॉज हम देख तो रहे हैं 2 मोल, बट हमारा 1 मोल रहा है प्रोडक्ट में। उसमें क्या था, उसमें हम देख तो रहे थे 1 मोल, हमारे 2 मोल रहे थे। अब इसके इसमें क्या, हमारे इसमें हम देख तो रहे 2 मोल, बट हमारा प्रोडक्ट में 1 मोल रहा है। So that's why we can infer that observed colligative property is less than calculated colligative property. Here for carboxylic acid I is equals to 1/2। आप देख सकते हो, जैसे फॉर्मूले में पुट करो दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितने हुए, 1 मोल बना। एंड बिफोर डिसोसिएशन हमारे कितने थे, 2 मोल थे। तो हमारे क्या हुआ, I is equals to 1/2 हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 1/2 इट इज़ डिक्रीजिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप बेंजीन सोल्यूशन में हम ये देख कह सकते हैं कि डाइमराइज होता है। फॉर बेंजोइक एसिड भी हम 2,6,C6H5COH इन 100% एसोसिएशन इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, हमारा वो एसोसिएट हुआ 1 मोल में। तो इस केस में भी आई की वैल्यू 1/2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन 1 इज इक्वल अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर डिसोसिएशन विच इज़ 2। अब ट्राइमर के लिए आपका 3 है, जैसे मान लो 3A गिवन है इन 100% डिसोसिएशन, इट इज़ गिविंग यू A3। देन I is equals to 1/3 फॉर टेट्रामर, I is equals to 1/4। टिल नाउ we have discussed एसोसिएशन फॉर 100% केसेस। 100% एसोसिएशन हुआ तब हमारी I की वैल्यू ये आई। तो उस केस में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था, इस केस में हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ रहे हैं, विच इज़, इसको आप बीटा से भी डिनोट कर सकते हो, बट मैं अल्फ़ा से ही प्रेफर करूँगा। बिकॉज अल्फ़ा जो है हमारा थोड़ा सा मतलब वैसे ही है ना, हमें पता है कि थोड़ा आदत हो चुकी है हमारी। तो अल्फ़ा है बेसिकली, इसमें 1 मोल से अल्फ़ा मोल एसोसिएट हुए, उसमें अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हुए, इसमें अल्फ़ा मोल एसोसिएट हुए। अब इसमें देखना कि जैसे आप ले रहे हो 2CH3COH, इसमें 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा। देन CH3COH होल ट्वाइस बन रहा आपका, होल ट्वाइस। देन इनिशियली आपकी कॉन्सेंट्रेशन आप 1 ही ले रहे हो, इसमें आप ले 2 भी सकते थे, बट अगर आप 1 ले रहे हो देन आपकी जो उसमें इनिशियली है वो 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH जो प्रोडक्ट में हमारी वो 0 है, उसमें भी 0 था। बट एट इक्विलिब्रियम में इसमें 1 माइनस अल्फ़ा है। अब मतलब 1 मोल से अल्फ़ा मोल एसोसिएट हुए, अब 1 माइनस अल्फ़ा है तो उसमें अल्फ़ा/2 होएगा। उसमें क्या था, उसमें 2 अल्फ़ा हो रहा था, क्योंकि उसमें जो हमारे प्रोडक्ट साइड में थे उसमें हमारे 2 थे, बट इसमें हमारे रिएक्टेंट साइड में 2CH3COH है, तो इसमें हमारा अल्फ़ा/2 होएगा। उसमें हमारा प्रोडक्ट साइड में 2 थे ना, मतलब 2Na था, तो हमारा 2 अल्फ़ा हो रहा था। बट इस केस में जो हमारा रिएक्टेंट साइड में 2CH3COH है, तो इसमें कि बेसिकली इस केस में हमारा एसोसिएट हो रहा है। तो एसोसिएट के केस में हमारा 2 से 1 हो रहा है, तो हमारा 1 में कितना होगा, 1/2, तो अल्फ़ा/2। तो 1 से अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा/2, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो दैट अगर आप इनिशियली 2 लेते, 2 से अल्फ़ा समझते, तो 2 माइनस 2 अल्फ़ा से अल्फ़ा बन रहा होता, ऐसे भी कह सकते हो। देन I is equals to अल्फ़ा/2 माइनस अल्फ़ा प्लस 1, दिस इज़ फॉर दिस फॉर्मूला, ओके। इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप I की वैल्यू जैसे निकालते थे, इसमें हमने लाइक टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन जो है हमारे अल्फ़ा/2 माइनस अल्फ़ा प्लस 1, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर डिसोसिएशन इज़ 1, सो अपॉन में तो 1 नहीं है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1 माइनस अल्फ़ा/2 आ रहा है फॉर CH3COH। सेम इज़ द केस विद बेंजोइक एसिड भी। बेंजोइक एसिड के भी सेम केस में भी आई की वैल्यू जो हमारी I-1, सॉरी I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा/2 आ रही है। बट फॉर ट्राइमर के लिए हमारी आई की वैल्यू जो है, अगर हम अल्फ़ा/3 ले रहे हैं, इसमें हम अल्फ़ा/2 ले रहे थे क्योंकि ये डाइमर था। अब ट्राइमर के केस में अल्फ़ा/3 है, इसमें मतलब उसमें 3 मोल्स फॉर A इज इक्वल टू A होल थ्राइस, सो I इज इक्वल टू अल्फ़ा/3 माइनस अल्फ़ा प्लस 1। ट्राइमर हो गया, डाइमर हो गया। सिमिलरली टेट्रामर के लिए अल्फ़ा/4 कर देते। मेन कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, फिर बाकी तो अपने आप ही फॉर्मूला डिराइव होते रहेंगे। एंड मैं ये भी प्रेफर करूँगा कि आप इसका भी खुद ही करें, बट एक जनरल केस बुक में भी गिवन है, वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनरल केस में क्या है कि उसमें इसमें है Na इज़ गिविंग AN, ओके,
फॉर एग्जांपल Na जो हमारा है n समथिंग, यू कैन से 2 है 3 है, जैसा अभी हमने एग्जांपल में भी किया था 2CH3COH, इसमें हमने Na किया हुआ है क्योंकि हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं फॉर जनरल केस के लिए। इनिशियली हमारा 1 है कॉन्सेंट्रेशन, देन An की हमारी 0 है। अगर हम 1 माइनस अल्फा ले रहे हैं तो अल्फा बाय n होएगा, ये समझ आ गया होएगा। अभी तक हम यही किया था हमने। आई की वैल्यू करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। सो आफ्टर डिसोसिएशन में हमारे जो भी है अल्फा बाय n प्लस अल्फा माइनस 1, इनको ऐड कर दो जो भी करना है, ठीक है ना। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, तो आपका निकलेगा अल्फा माइनस n अल्फा अपॉन n प्लस 1। अब इसमें से i माइनस 1 को वहाँ पे ले जाओ, इज इक्वल्स टू अल्फा कॉमन लो एंड 1 अपॉन n माइनस 1, तो अल्फा इज इक्वल्स टू i माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन n माइनस 1। ये फॉर एसोसिएशन है, अल्फा फॉर एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में क्या था, i माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1, बट डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में क्या है, i माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन n माइनस 1। नाउ वी आर डन विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैन हॉफ फैक्टर। ये दो हमारे फॉर्मूला निकल गए, i माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन n माइनस 1 एंड अल्फा ऑफ डिसोसिएशन इज i माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1। बस जो n है उसका 1 अपॉन हो गया। समझ आ गया होगा क्यों हुआ है। अब हम एक बार फॉर्मूलाज देख लेते हैं, सारे रिवाइज कर लेते हैं। Formulas done till now, I is equals to total number of moles of solute after dissociation or association अपॉन में total number of moles of solute before dissociation or association। एक तो यही फॉर्मूला, इसकी बेसिस पे हमने सारे फॉर्मूलाज निकाले। और देन आई, अब ये भी समझना कि आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम, बिकॉज फॉर डिसोसिएशन के केस में आपकी आई की वैल्यू जो है ज़्यादा, एक से ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा होती है। बिकॉज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था कि इट इज़ लाइक मोर देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा है, बिकॉज डिसोसिएशन के केस में जो है आपका कि आपको दिख तो रहा है कि 1 मोल NaCl है, बट आपको पता थोड़ी है कि वो 2 में डिसोसिएट हो रहा है सोल्यूशन के अंदर। दैट्स वाई वी कैन से दैट ऑब्जर्वेशन उसकी जो है वो ज़्यादा निकल रही है हमसे दैन कैलकुलेटेड। आप कैलकुलेट करके तो निकाल रहे हो कि 3 ATM है, बट आपकी ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है कि 6 ATM आ रहा है, तो ऑब्वियसली आई की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। एंड दैट्स वाई वी हैव लाइक written formula that observed colligative property upon में calculated colligative property, in which observed colligative property ज़्यादा होगी, that's why it is a numerator, and accordingly we have derived the formula. But for association I की वैल्यू जो 1 से कम है, observed colligative property is less than calculated colligative property, तभी हमारा वो डिनोमिनेटर में है, तभी 1/2 आ रहा था। अगर आई की वैल्यू जो हमारी फॉर NaCl लिखे तो हमारी 2 आ रही थी इफ़ 100% डिसोसिएशन इज देयर, बट इफ़ फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड आई की वैल्यू 1/2 आ रही थी, बिकॉज उसमें हमारा 100% डिसोसिएशन, यही रीज़न है हमारा, इस क्यों आ रही थी वैसे। अब हम देखेंगे कि चेंज क्या हो रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ड्यू टू वैन हॉफ फैक्टर। अब अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उसमें वैन हॉफ फैक्टर की वजह से क्या चेंज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बस जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है ना, फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन में सल्यूट से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड केस में KB इंटू मोलालिटी इंटू आई से, विच आई इज वैन हॉफ फैक्टर। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी इंटू आई विच इज वैन हॉफ फैक्टर। पाई इज इक्वल टू MRT इंटू आई विच इज आई वेर आई इज वैन हॉफ फैक्टर। बस फर्स्ट केस में याद रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट है फॉर दोज हु डू नॉट शो एसोसिएशन और डिसोसिएशन लाइक यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, द वैल्यू ऑफ आई इज़ 1। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम आई की वैल्यू 1 ही ले रहे थे ना न्यूमेरिकल्स में। अभी तक हमें पता थोड़ी था कि वैन हॉफ फैक्टर भी कुछ है, बट हम आई की वैल्यू 1 ले रहे थे बिकॉज वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे थे हम। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यूरिया की बात करते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये केन शुगर, ये फॉर्मुला देखे थे ना हमने, NH2CO, NH2, C6H12O6, ये न्यूमेरिकल्स इसी के बेसिस पे सॉल्व कर दे। अभी हमें पता नहीं था कि आई की वैल्यू भी कुछ है हमारी, आई भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं, बट अभी हमें पता चल गया कि आई जो हमारा क्वालिटेटिव वैन हॉफ फैक्टर है, एंड उसी से हमारा एसोसिएशन और डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट लिंक्ड है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। सो आई की वैल्यू 1 लेना फॉर, अगर आपको क्वेश्चन में यूरिया गिवन है, ग्लूकोज गिवन है, सुक्रोज गिवन है, जो अभी तक लेते आ रहे थे। नाउ थ्योरी पोर्शन इज कंप्लीट। अब 4 न्यूमेरिकल्स करते हैं। 4 न्यूमेरिकल्स के बाद फेज 2, सॉरी हाँ, सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर वी कैन से दैट, सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर नहीं, सेकेंड हाफ ऑफ द वैन हॉफ फैक्टर वाला पोर्शन विच इज़ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड उसके न्यूमेरिकल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अभी तक जो था हमारा बेसिक्स था, ये बेसिक, ओके बेसिक भी बहुत था ये, मतलब आपको समझ आ गया पूरा वैन हॉफ फैक्टर, आ गया होएगा। अब न्यूमेरिकल्स करते 4, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। 31 मिनट्स हो गया, ओके जल्दी करते हैं। फर्स्ट देखो, एट अ गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट इज हमें गिवन है ये फॉलोइंग में, हमें बताना है कि किसका मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर होएगा
एट अ गिवन टेम्परेचर सेम है, इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है टेम्परेचर सेम है, देन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो सेम ही होता है सबके लिए, एंड कॉन्सेंट्रेशन भी हमें सेम गिवन है 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर। बट हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे अब, अगर हमें देखो, अगर हमें अभी तक कुछ पता नहीं होता कि वैन ऑफ फैक्टर कुछ चीज़ भी है, तब हम इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सब कुछ सेम गिवन है, देन सबके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, हर के लिए डिफरेंट होएगा। सो अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम होएगा और किसका लीस्ट होएगा और किसका कम होएगा, लेस होएगा, ठीक है ना। हम सीधा करेंगे, पाई हमारा फॉर्मूला है MRT। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी हमने क्या देखा कि MRT को हमने आई से मल्टीप्लाई करा, आई क्या वैन ऑफ फैक्टर। वी विल अभी तक अगर आपको गिवन ना हो क्वेश्चन में कि इतना % डिसोसिएशन हो रहा है, बट आप 100% डिसोसिएशन ही मान के चलेंगे। सो नाउ वी विल सी दैट वैल्यू ऑफ आई फॉर ईच मॉलिक्यूल गिवन है हमारा M R एंड T सेम फॉर ऑल मॉलिक्यूल। M इज़ कंसनट्रेशन टर्म इज सेम गिवन है 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, R तो सेम ही होता है एट अ गिवन टेम्परेचर भी सेम है। तो हमारा NaCl का हमें NaCl का निकालेंगे सबसे पहले, फिर Na2SO4, फिर एल्यूमिनियम सल्फेट। NaCl के केस में आई की वैल्यू क्या होती है, अब आई की वैल्यू जो होगी वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हम पाई की ऑस्मोटिक प्रेशर की हम आई की वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो आई जो हमारा इसमें है वो आई की वैल्यू हम 100% डिसोसिएशन है, तो हमें कुछ फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है, हम सीधा वो रिएक्शन देखिए कि NaCl 1 मोल ऑफ NaCl गिव्स यू Na+ NCl-, तो 2 मोल्स हो गया, तो 2 ATM हमारा आ गया फॉर NaCl। सिमिलरली Na2SO4 के लिए 2Na+ प्लस SO4 2-, तो हमारा आई की वैल्यू 3 आ गई, तो पाई इज इक्वल टू 3 ATM फॉर Na2SO4। देन एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए 2Al+ प्लस 2Al+ प्लस 3SO4 2-, तो हमारा आई की वैल्यू 5 आ गई, तो पाई हमारा 5 ATM हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट की ज़्यादा, फिर Na2SO4 देन NaCl। देयरफॉर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन ऑफ फैक्टर, कह सकते हैं ना, तभी तो हमने वैल्यूज़ निकाली, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थोड़ा डिफरेंट। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि दैट 1 मोलर NaCl गिवन है, 1 मोलर यूरिया गिवन है एंड 1 मोलर बेंजोइक एसिड गिवन है इन वाटर विच विल हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम किस केस में होएगा, जिस केस में पाई की वैल्यू ज़्यादा होएगी, सॉरी पाई की वैल्यू, जिस केस में आई की वैल्यू ज़्यादा होएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब फर्स्ट देखो 1 मोलर NaCl के केस में, 1 मोलर NaCl के केस में जो है, NaCl के केस में आई की वैल्यू आपकी 2 होती है, कह सकते हो पाई इज इक्वल टू 2 ATM। कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है इसमें, सेम है इसमें, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी सेम है, एंड वो तो हमारा सेम ही है, टेम्परेचर सेम ही गिवन हमें, डिफरेंस होता तो क्वेश्चन में मैंशन होता। तो पाई इज इक्वल टू 2 ATM निकला फॉर NaCl। अब यूरिया के लिए क्या होगा, यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अभी मैंने क्या बोला, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप आई की वैल्यू क्या लोगे, 1 लोगे, 1 लोगे तो 1 ATM आया इसमें यूरिया की। सिमिलरली बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड के केस में क्या होता है, एसोसिएशन होता है, तो आई की वैल्यू 1 से तो कम ही आएगी, 1 से कितनी कम आएगी आप पता कर सकते हो, जैसे हमने 2 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड लिया, तो फिर हमारा वो कितना मोल्स, कितना आई की वैल्यू उसमें कितनी आई थी, 1/2 आई थी, तो इसमें 1/2 ATM है। तो इसमें NaCl की सबसे ज़्यादा, देन यूरिया की, देन बेंजोइक एसिड की। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम, इसमें हमने 1% यूरिया लिया है। अब इसमें हमारी देखो मोलर कंसनट्रेशन जो है ना, मोलर कंसनट्रेशन इसमें हमने 1% लिया है, इसमें वेट बाय वॉल्यूम है। अब इसमें वो वेरी करेगा यूरिया के केस में, NaCl के केस में और Na2SO4 के केस में, वेट बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लिया। देन हमें बताना मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, तो पाई का फॉर्मूला हमें पता है MRT/I, R और T कांस्टेंट है, तो तीनों केस में R और T कांस्टेंट और कैंसिल हो रहेंगे, तो हम देखेंगे कि इसमें M और I में पाई इज इक्वल टू M/I, M इज़ मोलारिटी। अब मोलारिटी का क्या होता है हमारा, 1% हमें गिवन है, वेट बाय वॉल्यूम है, 1% मतलब 1 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो 100 ml है, तो फिर हमें उसे लीटर में करना होता है मोलारिटी के केस में। तो हम जैसे पुट करोगे तो पाई की वैल्यू फॉर यूरिया विल बी 0.01 ATM, पाई की वैल्यू फॉर NaCl विल बी 0.34 ATM एंड पाई की वैल्यू फॉर Na2SO4 विल बी 0.2 ATM। तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको ऑस्मोटिक प्रेशर के लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो NaCl की सबसे ज़्यादा होगी आई की वैल्यू, देन सेम विद, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, देन Na2SO4, देन यूरिया का सबसे कम है, बिकॉज उसमें हमने आई की वैल्यू जो 1 ली थी, सेम NaCl के केस में हमने 2 लिया है एंड Na2SO4 के केस में हमने 3 लिया है। तो ये बेसिकली अभी फर्स्ट हाफ ऑफ वैन ऑफ फैक्टर था। फॉर सेकंड हाफ के लिए कमेंट डाउन बिलो, मैं तो वो अपलोड करूँगा ही, फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अगर आपको और चाहिए वीडियोज़ तो मैं वो भी करूँगा, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। अभी फर्स्ट हाफ ऑफ द वैन ऑफ फैक्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड हाफ के लिए, विच सेकंड हाफ में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, देन उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल जो एग्जाम में ज़रूर आते हैं,
तो वो सेकेंड हाफ में आएगा फॉर वैंट ऑफ फैक्टर. या थैंक यू सो मच.